Hello dear students, I welcome you in your course Political Science and this is your lecturer Amreen Ayaz Khan. Well dear students, today we are going to study basic concepts of political science and approaches. Our topic of the day is basic concepts in political science and approaches. Okay, let me tell you first what is hegemony. It is the political, economic or military predominance or control of one state over other. And in other words, हम इसको supremacy भी कह सकते हैं. In ancient Greece, 8th century to 6th century, hegemony signified the politico-military supremacy of a city-state over other city-states. The dominant state is known as hegemony. In the 19th century, hegemony represented the social or cultural predominance or ascendancy. Predominance by one group within a society, a group of regime which exert undue influence within a society. It could be used for geopolitical and cultural preponderance of one country over other, from which was derived hegemonism. Okay, now we are going to study what is legitimacy, because these are one of the concepts of political science. It is a widespread acceptance of authority, usually a governing law or a regime. ठीक है, legitimacy क्या होती है? एक वाइडस्प्रेड एक्सेप्टेंस है किसी भी अथॉरिटी की और एक ये कोई भी गवर्निंग लॉ होता है. पॉलिटिकल लेजिटिमेसी इज कंसीडर्ड a rudimentary condition of governing without which a government will suffer legislative impasse and collapse. During the historical period of Zhou dynasty, the political legitimacy of leader and government was derived from mandate of heaven. An unjust ruler who lost said mandate therefore lost the right to rule the people. Legitimacy is a value whereby something or someone is acknowledged and accepted. ये एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पर कोई भी जो है उसको एक्नॉलेज किया जाता है या उसको कबूल किया जाता है. एक्सेप्टेड एज राइट एंड प्रॉपर. ठीक है, ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है स्टूडेंट. द पॉपुलर एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्निशन बाय द पब्लिक ऑफ द अथॉरिटी ऑफ गवर्निंग रेजिम, whereby authority has political power through consent and mutual understanding. ठीक है, अथॉरिटी के पास political power कैसे आती हैं? consent के ज़रिए and mutual understanding के थ्रू, not pressure. इसमें कोई भी किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं होगा. Political legitimacy is the people's recognition and acceptance of validity of the rule of their entire political system and the decisions of their rulers. ओके, अब देखते हैं कि लेजिटिमेसी की कितनी टाइप्स हैं. जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर ने ये 3 किस्म की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी की टाइप जो है वो इंट्रोड्यूस कराई हैं. नंबर 1 ट्रेडिशनल, कैरिज्मेटिक एंड रैशनल लीगल. What is nation? A nation is a community of people formed on the basis of common language, history, ethnicity or a common culture and in many cases a shared territory. कि उनमें जो territory होती है वो shared होती है. A nation is more overtly political than an ethnic group. It has been described as a fully mobilized or institutionalized ethnic group के तौर पर जो है हम इसको जानते हैं.
Here are few of the examples of the nation: फ्लेमिंग, कर्ड, स्कॉट, कोटा एंड हमंग. नेशन स्टेट की एग्जाम्पल में हमारे पास जापान है, पोलैंड है, फ्रांस एंड ईरान. एंड अनदर एग्जाम्पल्स आर यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा एंड इंडिया. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज सोवरेनिटी. सोवरेनिटी इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी. क्या है ये? एक सुप्रीम अथॉरिटी है विद इन अ टेरिटरी. किसी भी एक टेरिटरी के अंदर जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है वो सोवरेनिटी कहलाती है. सोवरेनिटी एंटेल्स हायरार्की विद इन द स्टेट एज वेल एज एक्सटर्नल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट. इन एनी स्टेट सोवरेनिटी इज असाइन्ड टू अ पर्सन, बॉडी और इंस्टीट्यूशन दैट हैज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी ओवर अदर पीपल. यानी कि किसी भी पर्सन, किसी बॉडी या इंस्टीट्यूशन को सुप्रीम जो पावर्स जो हैं और अथॉराइज कर दी जाती हैं, ठीक है, दैट हैज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी ओवर द पीपल, जो कि दूसरे लोगों पर ये अथॉरिटी होती है इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश अ लॉ और चेंज इन एग्जिस्टिंग लॉ. और इनका पर्पस क्या होता है कि किसी भी लॉ को इस्टेब्लिश करना या किसी एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज करना. इन पॉलिटिकल थ्योरी सोवरेनिटी इज़ अ सब्सटेंटिव टर्म डिज़ाइंड सुप्रीम लेजिटिमेट अथॉरिटी. इसको जो है एक सुप्रीम लेजिटिमेट अथॉरिटी का नाम भी हम दे सकते हैं ओवर सम पॉलिटी. इन इंटरनेशनल लॉ सोवरेनिटी इज़ द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय अ स्टेट. ठीक है, जब भी कोई भी स्टेट अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करती है, अपनी पावर्स को इम्प्लीमेंट करती है, दैट इज़ कॉल्ड सोवरेनिटी. अकॉर्डिंग टू स्टीफन डी क्रैंसर, the term could also be understood in 4 different ways. इस सोवरेनिटी की टर्म को हम 4 तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. डोमेस्टिक सोवरेनिटी मीन एक्चुअल कंट्रोल ओवर अ स्टेट एक्सरसाइज्ड बाय एन अथॉरिटी ऑर्गेनाइज्ड विद इन दिस स्टेट. ठीक है, एक एक्चुअल कंट्रोल है किसी भी स्टेट पर एक अथॉरिटी का, और ये अथॉरिटी जो ऑर्गेनाइज होगी किसी भी स्टेट के अंदर. सेकेंड है हमारे पास इंटरडिपेंडेंस सोवरेनिटी, एक्चुअल कंट्रोल ऑफ मूवमेंट अक्रॉस स्टेट बॉर्डर्स. ठीक है, एक्चुअल कंट्रोल जो होता है पूरी स्टेट बॉर्डर के अंदर ही होता है, अज्यूमिंग द बॉर्डर एग्जिस्ट. थर्ड वी हैव इंटरनेशनल लीगल सोवरेनिटी, अ फॉर्मल रिकॉग्निशन बाय अदर सोवरेन स्टेट. एंड फोर्थ वे इज वेस्टफैलियन सोवरेनिटी, लैक ऑफ अदर अथॉरिटी over state other than the domestic authority. Examples of such other authorities could be non-domestic church, जिसमें हम चर्च एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, a non-domestic political organization or any other external agent. So well dear student, these are 4 ways जिससे आप सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को easily understand कर सकते हैं. Now we are going to study further some of the approaches to the study of political science. Here are 2 basic approaches to the study of political science. Number 1 is traditional approach and second is modern approach. अब one by one हम इनको आगे further study करेंगे. Traditional approach to political science. The traditional approach to political science were widely prevalent till the outbreak of Second World War. ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आने तक जो है ये पॉलिटिकल जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी ये जारी रही. दीज अप्रोचेज वर मेनली रिलेटेड टू द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स का जो ट्रेडिशनल व्यू था ये टोटली उसी पर बेस करती हैं, विच एम्फेसाइज द स्टडी ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट. और इनका मोस्ट ऑफ द फोकस जो है वो स्टेट और गवर्नमेंट की स्टडी पर है. देयरफॉर ट्रेडिशनल अप्रोचेज आर primarily concerned with the study of organization and activities of the state. तो ट्रेडिशनल अप्रोच का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो किस पर है? स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट पर एंड द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिविटीज एंड द स्टेट. As far as some characteristic of traditional approaches are concerned, they are largely nominative हैं ये. एम्फेसाइज ऑन द स्टडी ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर इनका एम्फोसिस होता है. मेड लिटिल अटेम्प्ट टू रिलेट थेरी एंड रिसर्च, थेरी और रिसर्च को रिलेट करने में भी इनका बहुत कंट्रोल है.
एंड दीज अप्रोचेज बिलीव दैट द स्टडीज़ इन पॉलिटिकल साइंस कैन नेवर बी साइंटिफिक, और इसकी एक खूबी ये भी है कि इनकी स्टडी जो है वो कभी भी साइंटिफिक नहीं हो सकती. वेल, एज फॉर एज सब अप्रोचेज ऑफ ट्रेडिशनल approaches are concerned, so here are few of the sub approaches. Number 1 is philosophical approach, historical approach, institutional approach and legal approach. ये कुछ approaches हैं जो कि traditional approach में further divide होती हैं, और इसको हम one by one हम आगे study करते हैं. philosophical approach क्या होती है? The word philosophy comes from the ancient Greek word philosophia. Philosophy is the study of general and fundamental problems such as those connected with reality, existence, knowledge, values, reason, mind and language. के इस सब का ताल्लुक या ये किससे कनेक्टेड होती है? इसमें नॉलेज है, वैल्यूज़ है, रीज़न, माइंड और लैंग्वेज होती है. दिस अप्रोच इज़ कंसर्न्ड with the establishment of an ideal society with norms and values. और ये एक आइडियल सोसाइटी को वजूद में लाती हैं नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए. आर सेकेंड सब अप्रोच ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच इज़ हिस्टोरिकल अप्रोच. द हिस्टोरिकल अप्रोच बिलीव्स पॉलिटिकल थ्योरी इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस एंड द इम्पैक्ट दे हैड ऑन ग्रेट थिंकर्स. के ये रिज़ल्ट जो हुई थी ये कब इमर्ज हुई? एज ए रिज़ल्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद ये इमरजेंस में आई, और इस पर इम्पैक्ट है ग्रेट थिंकर का. फॉर इंस्टेंस, द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द ग्रीस प्रोड्यूस एरिस्टोटल एंड प्लेटो, वाइल द कंडीशन ऑफ इंग्लैंड in 17th century resulted in the theories by Locke and Hobbes. As the name suggests, it is based on the development and evolution in history. It uses knowledge of the history and applies it to the understanding of political life. Institutional approach. Our sub-approach is institutional approach. This kind of approach came into being in the 19th century. 19th century में ये approach जो है वो सामने आई थी, and due to the reaction, एक reaction इसकी एक reason है, reaction to the historical and legislative approach. इस यानी कि एक reaction जो हुआ था इन दोनों approaches का, historical and legislative approach के reaction के तौर पर 19th century में institutional approach जो है वो सामने आई थी. It is also important to concentrate on executive and legislature and judiciary too. ठीक है, ये important है कि इन तीनों चीज़ों पर जो वो concentrate किया जाए. This approach mainly deals with the formal aspect of government and political emphasis the study of the political institution and structure. Our last sub point is legal approach. The origin of legislative approach या जिसको हम legal approach भी कहते हैं can be traced back to 19th century. इसका जो origin है वो हमें 19th century में मिलता है, when the study of politics also included topics like law and legal system. जब politics के जो study topics थे वो law और legal system थे. This approach idealistic as they are concerned with beyond how and why political events happen to and what ought to happens. तो ये सारी इसकी जो है वो डोमेन में ऐड होती हैं. नेक्स्ट हमारी अप्रोच है डियर स्टूडेंट, मॉडर्न अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस टू मिनिमाइज द डेफिशिएंसीज ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोचेस. देखा कि जैसे कि ट्रेडिशनल अप्रोच का भी आपने देखा कि इसमें कई जो है वो हमें डेफिशिएंसीज बाद में आने वाले पॉलिटिकल साइंटिस्ट को नज़र आई, जिसकी वजह से उन्होंने एक नई अप्रोच जो है वो लागू की, दैट इज़ मॉडर्न अप्रोच. एंड वेरियस न्यू अप्रोचेज हैव बीन एडवोकेटेड बाय द न्यू पॉलिटिकल थिंकर्स. पॉलिटिकल थिंकर ने नई अप्रोचेस को वाजे किया. दीज अप्रोचेज आर रिगार्डेड एज द मॉडर्न अप्रोचेज. और इन्हीं तमाम पॉलिटिकल थिंकर की दी हुई अप्रोचेस को हम मॉडर्न अप्रोचेज का नाम देते हैं. टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस मैनी थिंकर्स regards these approaches as a reaction against the traditional approaches. और जो political thinker हैं या political scientist हैं वो इस मॉडर्न अप्रोच को ट्रेडिशनल अप्रोच के अगेंस्ट एक रिएक्शन के तौर पर भी समझते हैं. These are mainly concerned with the scientific study of politics. यानी कि जब साइंटिफिकली
पॉलिटिक्स को स्टडी किया जाए तो वो इन अदर वर्ड्स मॉडर्न अप्रोच कहलाती है. As far as some characteristics of modern approaches are concerned, these approaches try to draw conclusion from empirical data. Empirical data बहुत ज़्यादा important है, इसी के थ्रू ही ये conclusion जो है वो find out करते हैं. These approaches go beyond the study of political structure and its historical analysis. यानी कि उसका जो political structure है और जो historical analysis उससे कई हद तक जो है वो आगे है मॉडर्न अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच बिलीव्स इन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी पर ये बिलीव करती है. द एम्फेसाइज साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी एंड अटेम्प्ट टू ड्रॉ साइंटिफिक कंक्लूजन इन पॉलिटिकल साइंस. वेल डियर स्टूडेंट, मॉडर्न अप्रोचेस को भी फर्दर सब अप्रोचेस में डिवाइड किया गया है. देखते हैं इसकी फर्दर अप्रोचेस कौन सी हैं. नंबर 1 इज बिहेवियरलिज्म अप्रोच एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म अप्रोच. ये दो अप्रोचेज हैं जिसमें मॉडर्न अप्रोच को सब अप्रोचेज में डिवाइड किया गया है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज बिहेवियरलिज्म अप्रोच. डेविड एस्टन फर्स्ट पॉइंटेड आउट दैट इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म. डेविड एस्टन जो है उन्होंने ही सबसे पहले फाउंडेशन या बुनियाद रखी थी बिहेवियरलिज्म की. दिस अप्रोच बिलीव्स दैट देयर आर सर्टन यूनिफॉर्मिटीज़ इन द पॉलिटिकल बिहेवियर विच कैन बी एक्सप्रेस. के कई ऐसी यूनिफॉर्मिटीज़ हैं पॉलिटिकल बिहेवियर में जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन जनरलाइजेशन और थेरीज इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट पॉलिटिकल फिनोमिना. कि जिनको जनरलाइज करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और प्रेडिक्ट कर सकते हैं पॉलिटिकल फिनोमिना को. इन अ particular situation, the political behavior of individual may be more or less similar. Such regularities of behavior may help the researcher to analyze political situation as well as to predict the future political phenomena. Study of such regularities make political science more scientific with some predictive values. नेक्स्ट हमारे पास जो मेन पॉइंट है वो है पोस्ट बिहेवियरिज्म अप्रोच. पोस्ट बिहेवियरिज्म बिलीव्स दैट द यूज ऑफ साइंटिफिक टूल इज बेनिफिशियल इफ इट कैन सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी. तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच हमें यह पता चलता है कि साइंटिफिक टूल जो है वो बेनिफिशियल होंगे कब, जब वो सॉल्व करेंगे हमारी सोसाइटी के वेरियस प्रॉब्लम्स को. बिहेवियरिस्ट गिव टू मच एम्फोसिस ऑन मेथड एंड टेक्निक्स. उन्होंने मेथड और टेक्निक पर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस किया, जोर दिया है. एंड बिलीव दैट इट वॉज बेटर टू बी रॉन्ग देन वेग. एंड पोस्ट बिहेवियरिस्ट ऑन द अदर हैंड बिलीव दैट इट इज़ बेटर टू बी वेग एंड नॉन रेलिवेंटली प्रीसाइज. ये है हमारी पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच. वेल डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.